آغاز میں آپ کو بتائیں، غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اعلان، کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل اور حماس کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ معاہدہ اسرائیلی اسیران کی رہائی اور غزہ کے لیے امداد میں اضافے کا باعث بنے گا۔ جنگ بندی معاہدہ ایک آغاز ہے۔ جنگ بندی معاہدہ وسیع سفارتی کوششوں کے بعد ہوا۔ اب ثالثوں اور عالمی برادری کو دیر پا امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حماس نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے پریس کانفرنس سے پہلے حماس اور اسرائیلی وفود سے ملاقاتیں کی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا غزہ میں یرغمالیوں کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا ہے نیتن یاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسرائیلی 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ فلسطینی آنسوؤں کے ساتھ جنگ بندی معاہدوں کی خبروں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک جاری رہے گا۔ معاہدے میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کی واپسی شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچایا جائے گا۔ اگلے 6 ہفتے کے دوران اسرائیل دوسرے مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نائب صدر کیملا ہیرس اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی۔ اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی منصوبے کو درست شکل میں آگے بڑھایا۔ A hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin. غزہ جنگ بندی معاہدہ جو بائیڈن کریڈٹ لینے لگے، مگر قطری وزیر اعظم نے مذاکرات میں مدد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ایلچی کو شکریہ ادا کیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا مذاکرات میں مدد کرنے پر ٹرمپ کے ایلچی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات میں مدد پر تمام شراکت داروں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انطونیو گوتریس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ معاہدے کے نتیجے میں قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ حماس رہنما ڈاکٹر خلیل الحیہ نے کہا جنگ بندی معاہدے کے بعد نیا دور شروع ہوگا۔ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل ہو گئے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ترجمان پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا ایک فوجی پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوج پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس مقبوضہ کشمیر میں بربریت سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے بیان بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 فی لیٹر ہو گئی۔
डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफे से 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। रात 12 बजे से नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशंस का टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी खुशाइंद करार दे दी और कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त 15 रोज़ में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन गली महल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। खबर है कराची से, जहां पर तेज रफ्तार डंपर और ट्रेलर से शहरियों की हलाकतों का सिलसिला नहीं रुक सका। सुबह सवेरे सुपर हाईवे के करीब डंपर की टक्कर से राहगीर बच्ची जाँ बहक हो गई है। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 6 साला तानिया के नाम से हुई है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है सुबह सवेरे सुपर हाईवे के करीब डंपर की टक्कर से राहगीर बच्ची जाँ बहक हो गई है। रवां साल के पहले 15 दिनों में डकैती, मज़ाहिमत, हवाई फायरिंग और ट्रैफिक हादसात में 40 शहरी जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। छिपा फाउंडेशन ने 15 रोज के अदाद शुमार जारी कर दिए। मजीद जानते हैं नजीर शाह से। बताइए नजीर इस मुतालिक। बिल्कुल देखें, छिपा फाउंडेशन की जानिब से तशवीशनाक अदाद शुमार जारी किए गए, जिसके मुताबिक रवां साल के पहले 15 रोज के दौरान 563 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 36 शहरी जान से गए, 528 जख्मी हुए, जबकि जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान भी शामिल है। जबकि डकैती मज़ाहमत पर 1 जनवरी से अब तक 3 अफराद जाबाग और 15 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट औरंगी के थाने जमान टाउन में 12 रोज के दौरान 2 डाकुओं ने 2 शहरियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती मज़ाहमत पर पहला कत्ल 3 जनवरी को जमान टाउन में साहिल मसीह का हुआ, दूसरा 9 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मलिर घुगर फाटक पर आसिफ का हुआ, जबकि तीसरा कत्ल गुज़श्ता रोज 15 जनवरी को 17 साल हाफिज मुजफ्फर का हुआ। और डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले किसी भी शहरी के कातिल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और हवाई फायरिंग से 15 रोज के दौरान 1 शख्स जाँ बहक, जबकि रवां साल अब तक हवाई फायरिंग से 9 मर्द और 2 खवातीन भी जख्मी हुए। और शहरियों की अमवात किसी तरीके से भी हुई हैं, लेकिन मुलजमान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बनी रही, जो कि सवालिया निशान है। जी नजीर, शुक्रिया। पेशावर के इलाके तहकाल में 22 साला लड़की को शादी के 22 दिन बाद कत्ल कर दिया गया है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान, क्यों कत्ल किया गया है इस लड़की को? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ताकाल में पेश है, जहाँ पे 22 साला बीवी शादी के 22 दिन बाद जो है उसको कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो उसके शोहर पर लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 22 साला सना की शादी 22 दिन पहले हुई थी। सना के शोहर ने वाक़े के खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर शोहर बिलाल हैदर को गिरफ्तार कर लिए गए। इब्तिदाई तौर पर सारे शवाहिद जो है तफ्तीशी टीम के वो शोहर जावेद बिलाल के खिलाफ जा रहे हैं, जिस पर उसको हिरासत में लिया गया है। मकतूला के गले पर निशानात भी पाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। मुलजिम बिलाल हैदर के मुताबिक उसने बीवी की वाक़े को जो है वो खुदकुशी का रंग दिया और उसने कहा कि मैं जब घर आया तो वो मरी पड़ी थी। तमाम जो शवाहिद और तमाम टेक्निकल टीमें और पुलिस की तफ्तीशी टीमों ने जब काम किए तो इब्तिदाई तौर पर ये मुबैना तौर पर जाहिर किया जा रहा है कि तमाम जो शवाहिद है वो इस शोहर के खिलाफ जा रहे हैं। जी शुक्रिया अदनान। सियासी कैदी रिहा करो, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाओ। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालिबात आज हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। कमेटियों का इन कैमरा मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज 11:30 बजे होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात से पुरुमीद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के तहरीरी मुतालिबात सामने आए तो पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे। पीटीआई और हुकूमत में मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं। बानी पीटीआई की रिहाई शायद जल्द हो जाए, ये साल उनकी रिहाई का है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का प्रोग्राम 11th आवर में इंकशाफ, बोले कि बात तय है, जुडिशल कमीशन बनेगा, उसमें किसी का नुकसान नहीं। कमीशन बनने से लोग 4-6 माह के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से कुछ मुतालिबात छोड़ दिए जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों एक दूसरे को सहूलत दे रही है। बात तय हो चुकी है। कुछ कंसेशंस वो दे रहे हैं, कुछ कंसेशंस वो दे रहे हैं। ये कमीशन बन जाएगा। कमीशन का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ये है कि लोग फर्दर जो है ना वो 2-4-6 महीने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे कि कमीशन की रिपोर्ट आएगी, क्या होगा। हुकूमत के खिलाफ आ गई कमीशन की रिपोर्ट, तो इन एनी केस जो है ना उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कुछ मुतालबे जो है पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से छोड़ दिए जाएंगे और बाकी अदालतों से मुतालिक। लेकिन इतनी तफसीलात तो मुझे पता नहीं है, ये तो उनको हुकूमत वालों को भी पता। सारी तफसीलात ही आपको, मेरे पीरो मुर्शद, आपको पता है। ये तो हुकूमत को भी अभी तक पता नहीं है शायद। ये कामरान साहब को ये भी पता है कि हुकूमत को नहीं पता है।
करम में बंकर और मोर्चे मिस्मार होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ खारकली और बालिश खेल में 4 बंकर्स को धमाके से ख़त्म कर दिया गया। मिस्मार किए गए बंकर्स और मोर्चों की तादाद 7 हो गई। ज़ियारत मोर्चा बालिश खेल को क्रेन के जरिए मिस्मार किया जा रहा है। जरगे के रुकन हैदर शाह का कहना है कि मोर्चे पर फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, मज़ीद बंकर्स और मोर्चे मिस्मार किए जाएंगे। हालात मामूल पर आ रही हैं। टलपाड़ा चना रोड जल्द खोल दी जाएगी। करम में ग्रैंड जरगों के फैसलों पर अमल शुरू हो गया है। 2 काफिले पहुंच चुके हैं, अब तीसरे काफिले की रवानगी की तैयारी है। बंकर्स मोर्चों की मिस्मारी का अमल भी जारी है। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कॉन्वॉय गया, उसके बाद दूसरा कॉन्वॉय गया, तीसरे की तैयारी हो रही है। रेगुलर कॉन्वॉयज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सड़क पर पाड़ा चिनार के लिए बंकर्स को मस्मार करना है। जो मोर्चे बने हुए हैं उनका अमल भी शुरू हो चुका है। कुछ आज तबाह किए हैं, कुछ जो हैं कल हुए थे। ये जो अमन मुआहदे की शिकें हैं पर अमल करने में टाइम लग रहा है, स्लो चल रहे हैं, ताकि दोनों कम्युनिटीज का एतमाद हासिल करते हुए हम ये बंकर्स भी मस्मार करें और असले की वापसी भी। 1 फरवरी हमारी डेड लाइन है। 1 फरवरी तक असला भी वापस होगा और बंकर्स भी मस्मार होंगे। मुझे यकीन है कि उससे पहले जो हम ये चीजें नॉर्मलसी की तरफ ले जाएंगे। और अगर ये नहीं होता 1 फरवरी तक, तो फिर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? तो गवर्नमेंट के पास फिर यही ऑप्शन है, हुकूमत अपनी रेट इम्प्लीमेंट करेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल करना पड़े तो हम यकीनन कार्रवाई करेंगे। क्या बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ की पेशावर मीटिंग में मौजूद थे? तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से प्रोग्राम खबर में सवाल। बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, उनकी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मुलाकात में मौजूद नहीं थे। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा, बैरिस्टर सैफ मालूम नहीं इस बात को क्यों छुपा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर मीटिंग में मौजूद थे और बहुत अच्छे बच्चे बनकर बैठे हुए थे। मैंने उन्हें अपने गाँव के किस्से भी सुनाए। पावर्ड मीटिंग हुई थी, इसमें आर्मी चीफ भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, बाकी लोग भी थे। इसमें बैरिस्टर गौहर भी थे ना? बैरिस्टर गौहर तो मेरे ख्याल में उसमें मौजूद नहीं थे। तो ये तो बेसिकली ऑफिशियल मीटिंग थी। और साहब की वहाँ पे पेशावर में कोई अलहदा मीटिंग हुई है टॉप अस्करी क़यादत के साथ? मेरी मालूमात में तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं है और मुझे खुद पता नहीं चला कि क्यों इसको छुपाया जा रहा है। उसी पार्टी का सूबाई हुकूमती तर्जुमान है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, और ये मौसूफ सूबाई तर्जुमान होते हुए बयान क्या दे रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है। झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने गाँव की और बुनेर के ऑपरेशन के किस्से भी सुनाए और बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठे। एक बंदा झूठ बोले तो फिर क्या कर सकते हैं। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले, मैंने इजलास में बोला था कि अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैंने इजलास में सवाल उठाया कि पुलिस को क्यों अपग्रेड नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर के मैदान से भागने की आदत है, मीटिंग से भी चले गए थे। बंदा झूठ बोले तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने मीटिंग में बात की कि हर जगह तो फौज ने तो काम नहीं करना कि जलजला भी आए और बारिश भी आए और पोलियो के कतरे भी हों और सब कुछ है, वो तो फौज ने करना इस सूबे में। तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? मैंने यही कहा कि पुलिस को आपने क्यों अपग्रेड नहीं किया। अगर आपको 500 अरब मिला है, पार्लियामेंट में इसका जवाब आया है, जिसको आप खा पी गए हैं, अपने अयाशियों की नज़र कर लिया है, अपने धरनों की नज़र कर दी है, तो आप माने। अगर आपको अगर नहीं मिला था तो आप बैठ के अर्गू करें ना। ये कमजोर बंदे की निशानी है और बुज़दिल बंदे की निशानी है कि जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। काफी टाइम हो गया तो उसने सिगरेट भी नहीं पी थी, उनको आदत है बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की, उनका मशगला है ना। आपको इतला कैसे नमाज का टाइम जो मिले उसको क्या किया पहले वो तो बताए ना। 240 नहीं मिले होंगे, जो मिले उसको उन्होंने क्या किया पहले उसका तो जवाब दे देना। खबर है भारत के शहर मुंबई से, जहां पर अदाकार सैफ अली खान पर नामालूम शख्स का घर में घुसकर हमला, चाकू से जख्मी किया। अदाकार सैफ अली खान मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है। भारतीय मीडिया बताता है कि वाक़या रात 2:30 बजे पेश आया। नामालूम शख्स सैफ अली खान के कमरे में घुसा। नामालूम शख्स और सैफ अली खान के दरमियान हाथापाई हुई। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया गया कि पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अदाकार सैफ अली खान के घर पर हमले में करीना कपूर और बच्चे महफूज रहे। नामालूम शख्स अदाकार सैफ अली खान के घर चोरी के लिए दाखिल हुआ था और इस हमले में अदाकार सैफ अली खान की मुलाजमा भी जख्मी हुई है। मौसम से मुताल्लिक़ खबर ये, लाहौर में सुबह सवेरे धुंध छाई हुई है। सर्द हवा चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। शहर लाहौर में सुबह सवेरे शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और
ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है, जबकि धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में हैं, जिसके बाइस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी की मज़ीद शिद्दत में इजाफा होगा और दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आएगी और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% और शहर भर में इस वक्त हवा 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि दिन भर भी मौसम सर्द और खुश रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे रात का वक्त करीब आता जाएगा, सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। जी, खेल के मैदान से खबर ये, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। मुल्तान में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट जुम्मे से मुल्तान में शुरू होगा। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचों की टिकटों की कीमतें फाइनल कर ली। टिकट फरोख्त जल्द शुरू होने का इम्कान है। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी से कराची में पाक न्यूजीलैंड मैच से होगा। पाक भारत मैच हमेशा से ही बहुत बड़ा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 23 फरवरी को टकराएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से इसकी बातें शुरू हो गई हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, पाक भारत मैच का मुझ समेत सबको बेसब्री से इंतजार है। खबर आपको ने रावलपिंडी से, जहां पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग का मामला। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में इब्राहिम, इस्माइल और शीला समेत 4 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। बाबर मलिक आगाह करेंगे, बताइए बाबर। जी हाँ, मकतूल दानियाल राजा दानियाल इकबाल सतना मसा कसवाल गुजर खान का रिहायशी है और ये कल अपने साथियों के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में अबूरी जमानत के लिए पेशी के लिए आया। फिर वहाँ मौजूद जो है अफराद ने इसके ऊपर हमला किया और ये इस फायरिंग से ये दानियाल जो है वो कब्रजबाक हुआ और इसका एक साथी जख्मी हुआ था। थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है इस कत्ल और इक़दाम कत्ल, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई हैं। इस मुकदमे में गुजर खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के 2 अफराद समेत 5 नामालूम अफराद को शामिल किया गया है और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन पर जो मकतूल है इनकी और उसके चचा की ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम था और इनका तनाज़ा चला आ रहा था और यही वजह थी कि उन्होंने यहाँ पे दास लगाकर इसके ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। जी, शुक्रिया आपका। खबर आपको ने FIA स्टेट बैंक सर्कल की जानिब से कार्रवाई की गई है। गैर मुल्की करेंसी की फरोख्त में मुलव्वस हारून नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए कामिल। FIA स्टेट बैंक सर्कल ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब हारून नामी शख्स जो है ट्रांजैक्शन कर रहा था और फरोख्त कर रहा था गैर मुल्की करेंसी और FIA हुकाम के मुताबिक, डायरेक्टर FIA नुमान सिद्दीकी उनके मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 35,000 अमरीकी डॉलर, 10,000 UAE दरम, 1,500 पाउंड, 1,030 सऊदी रियाल और 1,20,000 रुपए पाकिस्तानी रकम मिली है। और कराची में और सिंध भर में गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ जो गैर कानूनी कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। शुक्रिया आपका कामिल। ज़राई शोबे की तरक्की और खुशहाली SIFC के तरजीहात का अहम हिस्सा। हुकूमती इक़दामात और SIFC की सहूलतकारी के बायस ज़राअत का शोबा तरक्की की जानिब रवा दवा। पाकिस्तान की 35% बंजर ज़मीन को काबिल काश बनाने के लिए सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी में बायोसलाइन मरकज़ का क़याम किया गया है। बायोसलाइन मरकज़ में नमकियात से मुतासरा ज़मीन के लिए जदीद हिकमत अमली बनाने की काविशें जारी हैं। पाकिस्तान में 6.3 मिलियन एकड़ अराजी नमकियात और पानी की निकासी से मुतासर हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलवी तहकीकी मरकज़ी माली मावनत से नमकियात के असरात पर प्रोजेक्ट की तमील खुशाइंद करार। मंसूबे की तकमील के बाद नमकियात से मुतासरा ज़मीन पर दरख्तों और पौधों की कामयाब काश्त की गई।
ARY न्यूज़ की निशानदही पर 58 करोड़ 65 लाख के फंड जारी कर दिए गए। महकमा हाईवे मुजफ्फरगढ़ की जानिब से खुशाब जंग रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। ARY न्यूज़ की मुसलसल निशानदही पर मेन शाहराह और पर खजीवाला से तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से एक्सिन हाईवे मुजफ्फरगढ़ शाहिद रियाज का कहना था कि सबसे मुतासरा हिस्से रंगपुर खजीवाला की असर नौ तामीर की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ को खुशाब और जंग से मिलाने वाली ये कौमी शाहराह अरसा दराज से अदम तवज्जही का शिकार थी। खस्ता हाल रोड के लिए फंड के इजरा और तामीराती काम के आगाज पर शहरियों ने ARY न्यूज़ की काविश को सराहा। अमरीकी मुसलमान लॉस एंजलिस में मुतासरीन आतिश ज़दकी इमदाद के लिए पहुंच गए। आतिश ज़दकी से सैकड़ों मकानात खाकिस्तर, हज़ारों अफराद बेघर हो गए। ऐसी सूरत हाल में अमरीका की सबसे बड़ी मुस्लिम फलाही तंजीम एक्ना रिलीफ की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक्ना रिलीफ के CEO अब्दुर्रऊफ खान ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और ऑपरेशंस की निगरानी की। उनका कहना था आतिश ज़दकी का इल्म होते ही अपनी टीम फौरी तौर पर मुतासरा इलाके में रवाना कर दी थी। हमारी टीम ने मुतासरीन को इब्तदाई ज़रूरियात जैसे खाने पीने की अशिया, अद्वियात और कपड़ों की फराहमी शुरू की और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक्ना रिलीफ न सिर्फ फौरी इमदाद फराहम करती है बल्कि तवील मुद्दती बुनियादों पर भी मुतासरीन की बहाली के लिए काम करती है। दो मौजूद हैं जो आग की वजह से शहीद हो गए हैं और उसकी बहुत बड़ी तादाद में उनकी जो कम्युनिटी है वो अफेक्टेड हुई हैं। एज एक्ना रिलीफ हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वजह से यहाँ मौजूद हैं कि हमने $250,000 को डेजिग्नेट किया कि हम यहाँ पर लोगों की मदद करेंगे उस सामान। और इस वक्त हमारी टीम पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है और उनका असल मकसद ऑब्वियसली लोग जो हमारे रेफ्यूजीज यहाँ मौजूद हैं मुसलमान। बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मैग्नीफाइड साइंस सेंटर कराची का दौरा किया, तरह तरह के खेलों में हिस्सा लिया और साइंसी तजुर्बात का मुशाहिदा किया। जेन मेरियट ने सेंटर में मौजूद अशिया में खालिस दिलचस्पी ली। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।